ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਆਨੂਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਸਤੀ ਏ ਮੁਕੱਦਸ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਾਖਿਆਤ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ
ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੋਂ 20 ਮੀਲ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਓ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੇ ਪੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। ਦੀਵੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਜਗਾ, ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। ਸੁਣਿਆਰਿਆ ਵੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ, ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾ, ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਐ ਜਿੰਦ ਕੁਰਲਾ, ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। ਦੀਵੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਜਗਾ, ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਨਾਨਕਾ ਵੇ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇੜੇ। मोहन घर आओ करो जो दरिया, मान करो अब मानै बोलो, भूल चुक तेरी फिर चिरिया। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दे
ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1.5 ਕੁ ਘੰਟਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾਓਗੇ ਓਨੀ ਵਿਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਵਿਲੱਖਣਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 18ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18ਵਾਂ ਰਾਗ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮਾਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਹ 300 ਅੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 300 ਅੰਗ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 310 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧੰਨ ਨੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਫਿਰ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਆਦ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 10 ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 10 ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼। ਲਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਆ। 1 ਵਿਸਾਖ 1856 ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ
सरदार रणजीत सिंह नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का खिताब मिलिया। तो गुरु नानक देव महाराज की अंश बंश विचों बाबा साहिब सिंह जी बेदी ऊना साहिब वालियां ने राज तिलक दिता। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का सहज पाठ होया, भोग पै अरदास करन तो बाद फिर गुरु साहब की हजूरी च राज तिलक दिता गया। ये लाहौर शहर जिहड़ा है रामचंद्र दे पुत्र लव ने अपने नां दे उत्ते वसाउणा कीता। छोटे ने कुशू ने की कीता बई अपने नां दे उत्ते कसूर नां दा शहर बद्धा। दोवें भरा अपना राज भाग करते रहे आखिर इन्हां दी आपस में तकरारबाजी हुंदी रही। ये ना आख्या करो कि मेरा भरा मेरे नाल लड़दा चार मरलियां पिछे। इत्थे ते लव कुछ भी लड़ते रहे आ। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम सन भगवान श्री रामचंद्र, उहदे पुत्र भी लड़ते रहे आपस में। इत्थे कैरों पांडव भी लड़ते रहे, इत्थे अवतार भी लड़ते रहे। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज तो नहीं लड़े, पर बाबे पृथ्वी चंद ने कोई कसर नहीं छड्डी है। ये दुनिया की रीत चली आउंदी, जिथे दो भांडे हुंदे ने ठहकदे हुंदे आ। लव कुछ आपस च लड़ते झगड़ते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई तो त्रेते का समा जिहड़ा बतीत हुंदा गया। द्वापर युग का पक्ष लगा। इन्हां दीयां पीढ़ियां चलदियां चलदियां जदों ये आपस में लड़ रहे सन तां कलगीधर पातशाह लिखते ने, लवी सब हारे कुशी सब जीते। कुशू दे खानदान दे उत्तराधिकारी जिहड़े वो लड़ाई चो जित गए ते लव दे हार गए। ते आखिर करदियां करदियां ना गल इत्थे आके निबड़ी। कुशू दे खानदान विचों अमृत राय नाम का एक उत्तराधिकारी होया। उन्हें वेख्या भी सारी जिंदगी राज भाग भोगिया, क्यों ना होवे कि राज दे विच आपां कुछ जोग कमाईए। तुहानूं भी रब ने सरदारी दिती है ना, मरले तो लैके मुरब्बियां दे मालक हो, जायदाद दे मालक हो। बेनती है राज भाग दे विचों प्राम होके रोज़ गुरु नानक दे घर आके संगत च ब्याह करो। कला राज ही ना भोगी जिया करो, कला राज ही ना मंगी जिया करो। राज दे विच जोग दा भी जोग दी दात भी मंगनी। जोग दा मतलब है जुड़ना। तो अमृत राय ने कीता भी राज भाग नूं त्याग के ते धार्मिक ग्रंथां दा अध्ययन करन वास्ते कांसी दी धरती चला गया। उत्थे ने वेदां शास्त्रां दा अध्ययन किया। चारे वेद मुखागर पाठ, चारां वेदां दा ज्ञाता बन गया। हुण वेदां दा पाठ करदा, वेदां दे श्लोकां दी कथा करदा। जिवें राह ते चलण वाले नूं राही कहा जांदा है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दा पाठ करन वाले गुरसिख नूं आपां पाठी साहिबान कह दिंदे आ। एवें वेदां दे पाठ करन वाले नूं बेदी कहना शुरू किया लोकां ने। अमृत राय ने जदों वेदां शास्त्रां दा अध्ययन किया, नाल परमात्मा दे नाम का अभ्यास किया, इहदी जुबान विच रस पैदा हो गया। ये जदों वेदां शास्त्रां की कथा करदा है तां श्रोता जन जिहड़े नूं मंत्र मुग्ध हो जांदे ने। कला हुंदी है रब दिंदा है ते परमेश्वर दे नाम चों पैदा हुंदी है। अखबारां दे आर्टिकल पढ़िया रस नहीं पैदा हुंदा है, जां टीके टिप्पणियां कीतियां रस नहीं पैदा हुंदा है। मूल मंत्र ते गुर मंत्र का अभ्यास कीतियां रस पैदा हुंदा है। अमृत राय फिर देसां ते संतरां दा रटन करदा, कथा विख्यान करदा। चलदियां चलदियां समा ऐसा आया कि अमृत राय कथा विचार पिया करदा ते उधर लवू दे खानदान विचों मोकल राय नाम का जिहड़ा उत्तराधिकारी सी, जिहदे कोल 20 कुछ पिंडां दी जायदाद जे बाकी रह गई सी, जिहदा हवाला गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिंदे। 20 गांव तिन के रह गए, तिन मैं करत किरसानी पए। लव दे वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो अगला उत्तराधिकारी जिहड़ा 20 पिंडां दी जायदाद दी किरसानी करदा सी, सुदागरी करदा सी। इन्हें अज कथा के समागम में आके बैठा, जदों विचारां सुनिया मन दे उत्ते ऐसा असर होया, ये बरागी ते त्यागी हो गया। सारी जायदाद का पट्टा जिहड़ा है
अमृत राय बेदी दे अगे रख के ते साधु हो गया। गंगा के किनारे जाके बैठ के परमेश्वर का नाम जपन लग पिया। अमृत राय बेदी ने जिहड़ी जायदाद मिली सी, अमृत राय बेदी के घर 3 पुत्र पैदा होए सन। नंबर 1 ते सल, नंबर 2 ते नरोत्तम, नंबर 3 ते अभोज। वो 3 पुत्र जिहड़े ने खेतीबाड़ी करते रहे ते नाल सुदागरी करते रहे। समा चलदा गया। जिहड़ा अमृत राय बेदी का पुत्र सी ना अभोज राय बेदी, ਉਹਦੇ घर ਉਹਦਾ आनंद कारज होया। अकाल पुरख वाहगुरू ने कृपा की भी ਉਹਦੇ घर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखिया गया नाथ जी बेदी। नाथ जी बेदी जदों जवान होए तो इन्हां दे आनंद कारज होए। समा पा के इन्हां दे घर रब ने पुत्र की दात दिती। उस पुत्र का नां रखिया गया शंभू जी बेदी। हुण शंभू जी बेदी जदों बचपन तो जवान अवस्था च आए, मापियां विआह कीता, समा पा के दे घर पुत्र पैदा होया, उहदा नां रखिया गया। तीजे दी वारी जदों आई, उहदा नां रखिया गया प्रजापत बेदी। हुण प्रजापत बेदी बचपन तो जवान होया, आनंद कारज होए, गृहस्थी समा बतीत होया ते समा पा के दे घर रब ने भाग लाए, पुत्र पैदा होया। उस पुत्र का नां रखिया गया नारायण बेदी। फिर नारायण बेदी जदों जवान होया, आनंद कारज होए तो ये घर भी परमात्मा ने औलाद की दात दिती, पुत्र पैदा होया। उस पुत्र का नां रखिया गया सनपात बेदी। सनपात बेदी बचपन तो जवान होया, आनंद कारज होए, गृहस्थी जीवन का कुछ समा गुजरिया तो रब ने फिर भाग लाए तो ये घर पुत्र पैदा होया, उसका नां रखिया गया राम नारायण बेदी। हुण वारी आई राम नारायण बेदी, बचपन तो जवान होया, आनंद कारज होए, समा पा के रब ने फिर औलाद की दात दी, घर पुत्र पैदा होया। उस पुत्र का नां रखिया गया शिवराम बेदी। ये 7 पीढ़ियां एक प्यो के घर एको पुत्र पैदा हुंदा चलदा आई, लड़ी चलदी आई, एक दा एक पुत्र पैदा हुंदा आया। हुण शिवराम बेदी जदों जवान होया, ये अपने प्यो दे नाले तां सुदागरी करदा है, नाले खेतीबाड़ी करदा है। ते गल जाहिर आ, जिहड़ा बंदा जमीन नाल मोह मुहब्बत रखदा उहनूं जमीन दा पता हुंदा है। शिवराम बेदी नूं मरले तो लैके मुरब्बे की जिहड़ी मुरब्बाबंदी है जां खेवटां दा ज्ञान इहनूं मोटा इलम सी। एक एक नंबर जानदा सी, मरला मरला जमीन जानदा सी। तां शिवराम बेदी जिहड़ा नाले किरसानी करदा नाले सुदागरी करदा, जदों ये जवान होया ते मापियां ने बड़े चाई चाई दा विआह कीता। सुखां सुखे मावड़ी पुੱਤ ਨੂੰਹ दा मेल अलोई। जदों शिवराम बेदी भर जवान होया तो यदा रिश्ता होया, तो यदी कुड़माई हुई तो उस वेले फिर इहदा रिश्ता जिहड़ा साडी सत्कारयोग माता बनारसी जी दे नाल होया। जदों माता बनारसी विआही हुई, शिवराम बेदी दे घर आई ना, ते माइया ने उतरों पानी वार के पीता, उपरों पानी वारिया झल्ले चिमकन पास, बड़े सगन स्वार्थ किते। तां जदों इनू वड्डियां तो पता लगा कि मेरे सुहाग भाग दे जिहड़े पिछलियां 7 पीढ़ियां ने, वो एक दे घर इक्को ही पुत्र पैदा हुंदा आया। तां ये नेक खानदान दी धी सी, घर की गीहन चंगी, बड़ी भगती वाली सी, बंदगी वाली सी, निमरता वाली सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी तो श्रोमणी गुण ਇਹ ਸੀ कि ਇਹ मनुख जाति ਵਿੱਚ कदे किसी नाल फर्क नहीं सी रखती है। सब मैं जोत जोत है सोए, किसी नाल तेर मेर नहीं सी करती है, सारियां नूं रब रूप करके जानदी सी। ते ਇਹਦਾ मन ਜਿਹੜਾ पाक पवित्र सी, ਜਿਹੜੀ गल जुबान चों कहंदी सी ਉਹ पूरी हो जाती सी। प्रभ जी बसा साध की रसना,
ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਨਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਦੇਣੇ, 2 ਜਾਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੇਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਨਰਾਦਰ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ 310 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ ਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਾਗੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ, ਪਰ ਹੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਆ, ਘੜੀ 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 ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਕਾਇਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ, ਚੇਤੂ ਕਹੀਏ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ 2 ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਏ ਆ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲੇਖੀਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਥ ਕਹੀਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਾਇਥ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਤਾ ਪਾਠ ਆਇਆ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੇਦੀ। ਇਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੈਂ ਕਰਤ ਕਿਰਸਾਨੀ ਭਏ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਅੱਖਰ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਸ਼ਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਲੋਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।
वो बहलोल लोधी के घर पुत्र पैदा होया सिकंदर लोधी, ਉਹਦਾ भी खानदान चलता पिया। तो सिकंदर बहलोल लोधी ने दिल्ली के तौस तखत तो शाही ऐलान किया। जदों भी किसी तखत तो शाही ऐलान हुंदा है वो आ घट गिणतियां वास्ते फाही का फंदा हुंदा है। ते ऐस तखत तो रोज़ फरमान हुंदा है, फरमान तेरा सिरै उपर फिर ना करत विचार। ते महाराज कहंदे सही तेरा फरमान किने ना फेरी है। गुरु जदों करदा फरमान करदा है तो सारियां दे भले वास्ते हुंदा है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। राजियां महाराजियां दे तख्तां तो ऐलान हुंदे ने, वो ऐलान घट गिणतियां दे गले विच फाही दा काम करदे। शिकम बहलोल लोधी ने एक ऐलान किया भी जिहड़ा बंदा अपने आप अपना धर्म छड्ड के मेरे इस्लाम मत विच आएगा उन्होंने मूँह मंगया इनाम दिता जाएगा, जगीरां दित्तियां जाणगियां, उन्होंने रुतबे दिते जाणगे। तां लाहौर दे लागे भट्टियां दी पिंडी नां दा एक पिंड आ। अज भी इक्को एक गोद दे कल्ले कल्ले पिंड जिहड़े ने वो बज्झे बैठे। आ तुहाडे लागे राजपुरा मसाणी पिंड आ, सारे शेरगिल बैठे आ। कईयां पिंडां दे विच काले की गोद दे सारे जिमींदार बैठे आ। मेरा पिंड आ, सारे बजुर्ग विरक खानदान दे बंदे बैठे आ, सारा पिंड विरकां दा। इवें भट्टियां दी पिंडी नां दा पिंड आ लाहौर दे लागे। ये भट्टियां दी पिंडी दे विच भट्टी राजपूत रहिंदे ने। वो भट्टी राजपूत सारे कबीले खानदान विचों एक भट्टियां दा नौजवान मुंडा है, बड़ा सोहना सुनखा, गज पर चौड़ी छाती, 6 फुटा जवान आ। इहदा नाम मापियां ने रखिया भट्टी राजपूत भोए। इहदे कन्नी खबर पई कि दिल्ली दे तखत तो ऐलान होया जिहड़ा इस्लाम मत धारण करेगा उन्होंने राज भाग मिलेगा, उन्होंने इलाके का चौधरी बना दिता जाएगा, जगीर मिलेगी, इनाम मिलेगा ते रुतबा मिलेगा। तो एक पक्ष वेखीए तां गल माड़ी है, खत्रियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गई। पर जे इतिहास का पन्ना वेखीए तो बड़ी वड्डी बख्शिश भी है परमेश्वर की। इन्हें अपना धर्म त्याग के, राजपूताना धर्म त्याग के ते इन्हें इस्लाम मत धारण कर लिया। इस्लाम मत जो धारण किया तो इनू इनाम दे विच 10 पिंडां दी जगीर मिली है, 10 पिंडां दी जायदाद। तो उस परगणे का नाम रखिया सकरपुर परगना। एक इनू घोड़ी मिली है बड़ी सोहनी, जिदे गिठ गिठ चौड़े सुम ने, जिदी गमची जिहड़ी मुट्ठी भारिया, जिदा मणका आला दर्जे का, ते जिदा सारा पुट्ठा बड़ा तांगिया, बड़ी सोहनी नस्ल की घोड़ी। चढ़न वास्ते घोड़ी मिली है, सिर ते बन्नण वास्ते एक पग मिली है, गल पाउण वाली एक शाही खिलत मिली है, ते गल विच पाउण वाली एक सुच्चे मोतियां दी माला मिली है। सोने दियां मोहरां भी मिलियां ने, पशमीने का एक शॉल मिलिया इहदे गल पाउण लई, तां इहनूं राए दी उपाधि मिली है। उन्हां दिनां विच राए दी उपाधि ते राए बहादुर दी उपाधि दित्ती जांदी सी। हुण इहदा मापियां नां रखिया सी भट्टी राजपूत भोए। भट्टी इहदी गोत सी राजपूताना, इहदी अपनी बरादरी पिछोकड़ खानदान, ते भोए इहदा मापियां ने नां रखिया सी। हुण जदों इहने धर्म तब्दील कर लिया, इहनूं राए दी उपाधि मिल गई, चौधरी बन गया 10 पिंडां दी जगीर दा। हुण भट्टी शब्द भी कटिया गया ते राजपूत इहदा खानदान भी इहने लकब छड्ड दिता, मुसलमान जी हो गया। हुण इहदे नां दे नाल भोए दे नाल राए दी उपाधि लग गई ते नां रह गया राए भोए। भट्टी राजपूत दोवें अखर कट्टे गए। जदों इनू 10 पिंडां दी जगीर मिली, सारा शाही ठाठ बाठ वाला साजो समान मिलिया। हुण 10 पिंडां दी जगीर दे विच बड़ा चाई रजिया। आंदा भी हुण आपां दीनों बेदीन ते होए आ, क्यों ना होवे कि हुण अपने नां दे उत्ते एक पिंड वसाईए जिहड़ा दुनिया च नां रवे अपना। तो 10 पिंडां दी जगीर लाहौर तो
लहिंदे पासे 20 मील की दूरी उत्ते सकरपुर परगना ते 10 पिंडां दी जगीर दे ऐन विचकार लिया के ने अपने नां दे उत्ते एक पिंड वसाया। उस पिंड दा नां आ राए भोए दी तलवंडी। राए भोए दी तलवंडी अपने नां दे उत्ते पिंड बद्दा, अपनी इनाम विच मिली हुई जगीर करके। तां जदों पिंड दा नाम रख दिता, फिर सोचदा भी हुण पिंड दे विच कोई हुनरमंद बंदे होण ते तां ही पिंड घुग वसेगा ना। तां सब तो पहला इहने घोड़ी ते चढ़ के इलाके दे जिन्ने जिमीदार सुण उन्हां नूं इकत्तर कीता। कहण लगे भी 10 पिंडां दी जगीर है, सारी मेरे तो ते वाही नहीं जानी। आओ तुसी आओ, सारे जिमीदार आओ, जिहड़ा बंदा जिन्नी जमीन वाह सकदा बीज सकदा उन्नी जमीन उन्होंने मैं मामले ते देंगा। जिमीदार इकट्ठे होकर राए भोए दी तलवंडी आ बैठे। वारों वारी आके जिमीदारां नूं पुछया भी सरदार जी दसो तुसीं किन्ने भरा हो? जी असीं 4 भरा वां। साढ़े 4 दे घर 2-2 3-3 पुत्तर ने। असीं घर दे 10 मैंबर हाँ। 2-4 नौकर रखे ने। साडियां घर दियां माइयां भी अद्धा काम साडे नाल कराउंदियां। ते राए भोए पुछदा भी जे तुहानूं जमीन दईए मामले ते वाहण लई किन्नी जमीन सांभ लोगे? पहलियां ने आख्या जी असीं 100 किला जमीन भोए सांभ लांगे, 100 किला भोए बीज लांगे वाह लांगे, ते जिहड़ा मामला बनिया असीं बाद दस्तूर तुहानूं 6 महीने तारिया करांगे। ठीक है, 100 किला जमीन तुहानूं जिहड़ी ओह दित्ती जाएगी। इस तरह एक एक करके 10 पिंडां दी जगीर जिहड़ी आ ओह जिहड़े जिमीदार किसान सन उन्होंने मामले ते देती। हुण जिमीदार तां सारे आ गए ते राए भोए कहण लगा भी इन्हां परिवारां नूं घर बना के देने ने। फिर राजगीर सद्दे इलाके विचों राजगीरां नूं हुकम कीता कि गृहस्थियां वास्ते घर बनाओ। घर बनन लग गए। कहण लगे भी इस नगर विच गृहस्थियां ने रहना, इन्हां ढिले मट्ठे भी होना। इत्थे फिर एक वैद बुला नाम दिता गया। वो एक एक हुनरमंद बंदा लिया के राए भोए दी तलवंडी दे विच वसाया। इत्थों तक कि जिहड़े सोने का काम करने वाले सन वो भी लियाते। जदों सारा नगर घुग वसन लगा तां फिर राए भोए ये सोचदा भी 10 पिंडां दी जगीर मैं वंड के ते देती जिमीदारां नूं, हुण सारी दा मामला कौन उगराएगा? क्यों ना होवे कि सारी जगीर दा एक कारगार लाया जाए, ते कारगार उसे नूं लाया जाए जिन्हों जमीन का ज्ञान होवे। तां फिर पुछ पड़ताल करदियां करदियां गोडे नगर विच रहन वाले शिवराम बेदी, जिहदे घर 2 पुत्र पैदा होए सन, मेहता कल्याण चंद बेदी ते लाल चंद बेदी, जिहदी घर वाली साडी माता बनारसी जी, ओहदी दस पई ते गोडे नगर जाके राए भोए ने फिर इनू बेनती की कि तुसी मेरे नगर आओ, मेरी 10 पिंडां दी जगीर दे कारदार लगो, सारियां तो मामला कराओ, जिन्नी जमीन तुसी वाओगे बीजोगे तुहाडे तो कोई मामला नहीं लिया जाएगा। तो शिवराम बेदी फिर गोडे नगर चो चल के राए भोए दी तलवंडी च आके वसेबा किया। इधर हुण कल्याण चंद बेदी बचपन विचों जवान हुंदे गए ते उधर राए भोए दा आनंद कारज होया सी। राए भोए दे घर पुत्र पैदा सी राए बुलार, इहदे घर भी पुत्र पैदा हो गया जिहड़ा इलाके दा चौधरी 10 पिंडां दी जगीर दा मालक आ। ते दूजा हिंदुस्तान दे बादशाह बहलोल लोधी दे घर पुत्र पैदा होया सिकंदर लोधी। ते इधर 10 पिंडां दी जगीर दा जिहड़ा कारदार आ शिवराम बेदी, उहदे घर पुत्र पैदा होया कल्याण चंद बेदी। ये तिन्ने पीढ़ियां दे वारस जिहड़े ने हाणो हाणी जवान हुंदे गए। कल्याण चंद बेदी जदों भर जवान होया तां शिवराम बेदी ने माता बनारसी ने अपने पुत्र दा चाई चाई विआह कीता। लाड़ा एक विआही है बाहले जांजी कर मेहमाना। तो जदों कल्याण चंद बेदी दा आनंद कारज होया ते साडी अति सत्कारयोग पूज्य माता धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, सत्कारयोग माता तृप्ता जियां दे नाल आनंद कारज होए। तो मेहता कल्याण चंद बेदी जदों विआह के लियाए ना माता तृप्ता नूं, ते उपरों पानी वारिया झल्ले चिमकण पास बड़े सगन स्वार्थ कीते।
ते गृहस्थी जीवन जिहड़ा वो शुरुआत हुई। गृहस्थी जीवन बतीत करदियां करदियां दिन गुजरन लगे। महाराज आंदे गृहस्थी गृहस्थ धर्माता। तुसी ते कमलिओ गृहस्थी हो के ते साधां दे टेटे चढ़े फिरदे ना, डेरियां 'च तुरे फिरदे सारे गृहस्थी। घर माँ प्यो भुखे छड्ड के, मईयां गाइयां भुखियां प्यासियां छड्ड के लोकी डेरियां नूं चढ़न। तुहाडी बेड़ी तरज है तुहाडी। तुहानूं बाणी आंदी है गृहस्थी गृहस्थ धर्माता। तुसी वड्डे साधु हो पर तुहानूं समझ नहीं आई है। गुरु अर्जन देव महाराज आंदे गृहस्थी गृहस्थ धर्माता। जिस बंदे ने सवेरे अमृत वेले उठ के आप हल वाउणा है, माल पशु सामभना है, घर का काम कार करना है ना, सूरज उगण तो पहला पहला गुरु घर भी जा आउणा, खेत भी गेड़ा मार आउणा, मईयां नूं पट्ठे पा के पानी पिया के मईयां चो लैणियां ते गोहा कूड़ा करके ते बाकी सारे काम कर लेने ने। सारा दिन फिर मेहनत करनी, किसी नौकरी करनी है, किसी कारोबार करना है। सारा दिन भुखे तस्से रह के वेले क वेले रोटी खा के अपने माँ प्यो की संभाल करनी है, बच्चों नूं पालना है। गुरु अर्जन देव महाराज ने एडू वड्डा साध कौन है दुनिया 'च, पर आपां नूं समझ ही नहीं आई है। आपां गुरबाणी नूं पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके। जिहड़ी गल गुरबाणी आंदी है महाराज दे ऊहां तौं जाइए जां इहां ना होए। किसे कोल रब नूं लभण तां जाओ जे तुहाडे घर रब ना होवे। तुहाडे घर माँ प्यो रब बैठा है, जे माँ प्यो ने कोई हिस्से 'च फर्क किया तुहानूं रब रूप नहीं लगदे तां महाराज कहण लगे तुसीं आपे ही आने ओड़े घर बच्चे ने रब रूप हुंदे ने, ये बच्चे रब रूप ने। जे बच्चों भी कुट मार लिया भी ये बड़े जिद्दी ने, चीज़ां मंगदे आ, रब रूप नहीं, तो महाराज आंदे आ फिर मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। अपने घर विच रहण वाला तू आप ही रब रूप आ, पर तू कदे अंदर झात ही नहीं पाई कमलिया। एवें ही बाहर तुरिया फिरना, जिथों तेनू अजे तक कख नहीं लभा, तेरे पल्ले कुछ नहीं पिया अजे तक। ना मन शांत होया, ना कोई आत्मा दा सुख मिलिया, नहीं मिलिया, कुछ नहीं है। भज्जा दौड़ीए दुनिया तुरी फिरदी है। मारने गृहस्थी गृहस्थ धर्माता। गृहस्थी नालों को वड्डा धर्मात्मा नहीं जिन्हें 10 नौवां की किरत कमाई करके रोटी खानी। तां माता तृप्ता जी का गृहस्थी जीवन बतीत होने लगा। घर आने वाले हर मेहमान का बड़ा अदब सत्कार, भुखे नूं रोटी, नंगे नूं कपड़ा दे के माता तृप्ता जी ने घरों तोरना। ते चेता रखियो जिन्नी जमीन वाही होवे ना, जिन्नी जमीन वत्तर होवे, जिन्नी जमीन सौरी होवे, उन्नी फसल का झाड़ वध हुंदा, चंगी फसल टटदी है। जिन्नी मां नेक होवेगी उन्ना ही उहदे घर धी पुत्र नेक पैदा होवेगा। ये तुहानूं पता सारिआं नूं। आ ताबिया बहन वाला कोई विरली मां पुत्र पैदा करदी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी ताबिया बहन वाला कोई विरली मां पुत्र पैदा करदी है। शराब की महफिल च बहन वाले तो तुसां सारिआं पैदा कीते ने। ताश दे अड्डे ते बहन वाले तो सारिआं दे पैदा हो गए ने। कौम दी देश दी सेवा करन वाला कोई विरली सीणी मां पुत्र पैदा करदी है, कोई विरला विरला। ते जिन्नी जमीन साफ होवेगी उन्नी फसल सोहनी होवेगी, जिन्नी मां नेक होवेगी उन्ना पुत्र जिहड़ा साऊ पैदा होवेगा, उन्नी धी पैदा साऊ होएगी। माता तृप्ता एडी निमरता दी मूर्त, संतोख दी मूर्त, रब दे रंग विच रत्ती होई, दैवी गुण कुट कुट भरे होए। समा चलदा गया, 10 महीनों का समा गुजरिया माता तृप्ता जियां दे गर्भकाल दा। मां की इच्छा हुंदी, गुरु रामदास महाराज आंदे आ, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा। जदों मां गर्भकाल के समय नूं पालदी है ना, 10 महीनों का समा, उदों मन में इक्को रीझ रखदी, रब्बा मेरे घर जे पुत्र पैदा होवे तां मेरा इस घर दे विच मान सन्मान होना है। चेता रखियो, धी भैन किन्नी मर्जी पढ़ी होवे, किन्नी सोहनी सुनक्खी होवे, जवान होवे, किन्नी साऊ होवे,
किन्ना पेकिਆਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇ, पर जिन्नी देर तक धी भैन दे घर पुत्र पैदा ना होवे उन्नी देर तक सहुरे परिवार दे विच मान सन्मान नहीं वधदा। गुरु साहब आंदे आ, गोरी सेती टुटै पधार, पुत्ती गंढ पवै संसार। जे पहला पलेठी दा पुत्र नूं जन्म दे लवे तां उहदा मान चौगुना हो जांदा। तो माता तृप्ता दे घर 10 महीनों का समा गुजरदा पिया ते मां जिहड़ी है दिन रात अरदासां करदी है, अकाल पुरख वाहिगुरू मेरे खानदान दे विच पिछलियां 7 पीढ़ियां एक दे घर एक जन्मदा रहा ते आ मेरे सिर दा सुहाग भाग 2 भरा ने। जे हुण तू इन्हां नूं 2 पैदा कीते ने ते कृपा करी मैनूं भी 1 तो 2 जां वध बच्चियां दी मां बना के मान बख्शिश करी। तां माता तृप्ता दे घर समा पा के पहले बच्चे ने जन्म लिया तो वह पहली बार धी पैदा हुई। आ जिन्ना सज्जणा दे घर पहली बार धी पैदा हो जाए ना, उन्होंने झुरना नहीं चाहिए कि लो पहली बार ही माइयां तो होर ही कुछ बचन बोलदियां कि पत्थर जम धरिया। ये बीबियां ही बीबियां दियां वैरी होइयां बैठियां, बंदे ते गल ही छड्डो। हुण दसो माता तृप्ता कोई घट भागां वाली जिहदे घर पहली धी पैदा हुई। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दा बचन जे गौड़ी राग च भगत कबीर साहब दा बचन आ, आंदी पाछै जो जल बरखै तिह तेरा जल जन भीना। जे घर विच धी पैदा हो जाए ना पहली बार तो माइयां आंदियां कोई नहीं, जे रब ने धी दित्ती तो पुत्र भी देगा, भाव जे नेरी आई तो मींह भी आएगा, जे नेरी आई तो मींह भी आएगा, जे धी पैदा होगी तो पुत्र भी रब देगा। माता तृप्ता दे घर पहला नंबर धी पैदा होई दा नां रखिया, धी दा नां रखिया जिन्हों आपां बेबे नानकी कहने। बेबे दा मतलब हुंदा भैण। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब। भैया कहिए भरा, भाभी कहिए भरा दी घर वाली, ते बेब कहिए भैन। तां भैन नानकी नूं बेबे नानकी कहा जांदा। ते दूजा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे महल भी माता नानकी ने, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी माता। 2 नानकियां ये ने। तीजी नानकी इतिहास दे अंदर सरदार श्याम सिंह टारी दी धी है, जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे कंवर नौ निहाल सिंह नूं विआही गई। 7 मार्च 1836 नूं लाहौर दी धरती ते विआही गई। ये 3 नानकियां ने जिहड़ियां सिख कौम के इतिहास के पन्ने विच वड्डा मुकाम रखदियां, जिन्हां ने कौम लई कुर्बानी की, कौम की देन है इन्हां 3 नानकियां दी। भैन नानकी, माता नानकी ते बीबी नानकी। पहले बच्चे ने जन्म लिया तो धी ने जन्म लिया तो ना नानकी रखिया। मेहता कल्याण चंद बेदी ने शुक्र किया कि साडे घर 8 पीढ़ियां बाद धी पैदा हुई है। अभोज अमृत राय बेदी के घर 3 पुत्र पैदा हुए सन, सल जी, नरोत्तम जी ते अभोज जी। अभोज के घर नाथ जी बेदी, नाथ जी के घर शंभू जी बेदी, शंभू के घर प्रजापत बेदी, प्रजापत बेदी के घर नारायण जी बेदी, नारायण जी बेदी के घर सनपात बेदी, सनपात बेदी के घर राम नारायण बेदी, राम नारायण के घर शिवराम बेदी, शिवराम बेदी के घर कल्याण चंद बेदी ते लाल चंद बेदी। ते 8 पीढ़ियां बाद अज धी ने जन्म लिया तो मापे बड़े चाई रजे। जे अखंड साहब के सवेरे भोग पे ने तो 9वें पातशाह के सलोकां विच पाठ आया सी, घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। घट शब्द संस्कृत जुबान का, संस्कृत जुबान विच घट आखदे ने मिट्टी का भांडा। साडा शरीर मिट्टी का भांडा है। तो महाराज ने 2 बार शब्द लिखिया, घट घट मैं हर जू बसै। भाव एक शरीर रूपी भांडा साडे घर जन्म लैण वाली धी दा, एक शरीर रूपी भांडा साडे घर जन्म लैण वाले पुत्र दा। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे चरण छो प्राप्त स्थान ते बैठे हैं। ते महाराज आंदे आ घट घट मैं हर जू बसै,
जिन्नी परमेश्वर की जोत पुत्र दे शरीर विच वसदी है, उन्नी ही जोत अकाल पुरख वाहिगुरू दी धी दे शरीर च वसदी है। ये नहीं कि पुत्र जिहड़ा वो अंश बंश का मालक है, ये रब की जोत ज़्यादा है, तो धी जिहड़ी ये पराया धन आ, बगाना धन है, ने बगाने घर जाना है, तो ये रब की जोत घट है। ना ना ना, महाराज दे घट घट मैं हर जू बसै। साडी धी दे शरीर विच भी परमेश्वर की जोत उन्नी जगदी है, तो पुत्र दे शरीर दे विच भी परमात्मा की जोत उन्नी जगदी है। इन्हां दूआं विच फर्क ना जाणिया करो। जदों तुसीं धीआं पुत्रां विच फर्क करदे हो ना, तो रब कोई अन्ना नहीं, रब दियां भी दोवें अखां ने, उदों ही रब नज़रां फेर लैंदा है। फिर की हुंदा, नदरे ओ पट्ठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएंदा। मेरा मनना है, तजर्बा है कि जेड़े घर विच धी पैदा हुंदी उहदे घर विच कोई तोट नहीं आउंदी, रब सारियां बरकतां पांदा है। ते इन्हां दूआं विच फर्क कोई नहीं है। माता त्रिपता दे घर धी पैदा हुई, बड़ा चाह कीता भी पिछलियां 7-8 पीढ़ियां तो साडे घर धी ने पैर ही नहीं पाया, ते अज भैन नानकी दा जन्म होया, नां रखिया गया नानकी। ते इन्ने भागां वाली, एडे भागां वाली, क्या बात है, जिहड़ी वीर नूं ते लैके आई, वीर की लियाई, रब नूं नाल लै आई भी चल चलीए। आ साडियां धीआं साडियां भैणां तो एक तो बाद भरा पैदा हुंदा, आपां ने कर्मां वाली वीर दी बांह फड़ के लियाई। ते भैन नानकी एडे कर्मां वाली, एडे कर्मां वाली, वीर दी बांह की फड़ के लियाई, रब दी बांह फड़ के लै आई नाल। जोत रूप हरे आप गुरु नानक खायो। सारे जने आखो धन्य आ भैन नानकी, जिन्हें एडी वड्डी पता नहीं की जिंदगी का संयोग है, नानक निरंकारी नाल भैन भरा दे संयोग का पक्ष बनिया। तो भैन नानकी का जिहड़ा बचपन का समा मापियां की छत्र छाया थले गुजरिया, समा पा के ना हुण भैन नानकी अरदासां बेनतियां करदी है, रब्बा मेरे मैनू एक वीर दे, असी भैन भरा दोवें खेडिया करें। बच्चों की आपो अपनी रीति हुंदी है, तो बच्चों का जिहड़ा वो संजोग बनता है, भैन भरावां का संजोग है अपना। पता नहीं किवें आपां एक माँ की कुखों जन्म लै लिया, दोबारा नहीं लेना है। महाराज आंदे आ, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बौर ना पेखा आए। आ जिहड़े घर दे जी ने, जिहड़ी दौलत आ, जो भी राज भाग आ, जिहड़े पिंड च रहिंदे आ, जिहड़े शहर च आउने जाने आ, आपां मुड़ के दोबारा इन्हां थावां ते नहीं आउणा है। वै सुत आ पुत्र जिहड़े ने किदा एक किदे 2 3 4, वै सुत वै बित आ जिहड़ी दौलत है रब ने थोड़ी दित्ती है, बहुती दित्ती है। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, जिहड़े पिंड च रहिंदे आ, पाटन कहिए जिहड़े शहर च आउने जाने आ, बाहर ना पेखा आए, मुड़ के नहीं इत्थे आएगा तू। ते आपस च मुहब्बत रखिया करो भैन भरा, एवें ना माड़ी माड़ियां गल्लां तो लड़ी जाना, एवें माड़ी माड़ी गल तो मूँह मोटा करके रहना। 4 दिनां दी जिंदगी पता नहीं कदों सदा आ जाना। भैन नानकी अरदासां करदी, अकाल पुरख वाहिगुरू मैनू वीर दे, असीं दोवें भैन भरा कट्ठे खेडांगे ते जिंदगी बसर करांगे। वो एक भैन दियां अरदासां ते दूजा कारण, उस वेले बहलोल लोधी दे घर पुत्र पैदा होया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जवान हुंदियां सारे ने जुल्मो सितम की इंतहा की। इन्हें ऐलान जारी कर दिते कि पहला नंबर मेरे राज दे विच कोई सनातनी झटका नहीं करेगा, जिथे होएगा हलाल होएगा, मेरे धर्म की रौह रीति चलेगी, किसी की वखरी मर्यादा नहीं पड़ेगी। दुशहरे का दिन आया तो जौनपुर के अंदर सनातनियां ने इकट्ठियां होकर बली दिती किते बकरे की, ते सनातनियां ने किया बकरा झटका मारिया, इको टक च वढ मारिया। वेखण वालियां ने वेख लिया। वो जिहड़ी खबर जिहड़ी चलदी चलदी काजी कोल चली गई, मुलाणियां कोल चली गई। दिन चढ़दे नूं सारियां खबरां आईयां, कचहरी लगी, सारे सनातनी इकट्ठे कर लै। तुसां हुक्म दी अदूली कीती, तुहानूं कहा सी झटका नहीं करना, जे बली देनी है हलाल करके देनी, जिबा करनी है। जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करै, मानिया शेख शहीद पीरा।
तो कहन लगे जिन्हां जिन्हां ने रात बकरे की बलि दी झटका किया उन्होंने लैन च खड़े करो। लैन च खड़े कर दिते। कहन लगे चलो उसे देवी की मूर्ति के अगे उहदे अगे लिया के सारे दे सारे झटका मारे उस तरह भी तुसां हुक्म दूली की है। मिर्जापुर शहर के अंदर बिंद बासनी नां दा मंदिर आ, उत्थे देवी की मूर्ति के अगे सनातनियां ने बलि दी, उहदा भी पता लगा तो काजी मुलाणिया ने अगले दिन कचहरी लाई तो फतवा जारी किया, जिन्हां ने रात देवी के सामने बलि दी उन्हां दे खड़े करके उनके मूँह दे विच गऊ की हड्डी समेत मांस मूँह च पाई गई, नाले बाद विच कतल किए गए। कांशी दे अंदर राम प्रसाद नां दा एक सनातनी सी बजुर्ग, उन्हें की किया भी पितरां दे निमित्त ना श्राद्धां दे दिन सन, पितरां दे निमित्त संख पूरिया चा किते रात नूं, उहदी खबर मुलाणिया कोल पहुँच गई। सवेरे दिन चढ़े वो ब्राह्मण ते उहदा पुत्र दोवें कट्ठे कीते, कहन लगे तुसां रात संख पूरिया, पहला संख भन्निया फिर दोवां प्यो पुत्रां नूं कतल कर दिता गया, यह जुल्मो सितम हो रहा सी। फिर उस वेले बहलोल लोधी ते सिकंदर लोधी वल्लों ये ऐलान जारी किया गया सी भी कोई किड्डा मर्जी जिमीदार होवे वो अपने घर दे विच 6 महीनों तो वध रिजक नहीं रख सकता। तुहाडे घरां दे विच ना साल साल डूढ़ साल की कणक पई रहिंदी है, रिजक पिया रहिंदा। उदों ये ऐलान जारी किया सी कोई बंदा 6 महीनों तो वध अपने घर विच रिजक नहीं रख सकता। साडियां मावां ने चौल छड़ा के ना ते 1.5 2 सालों के चौल पुराने साम के रखे आ भी जिन्ने पुराने हुण उन्ने वधिया बनते आ। ये गुरु नानक साहब की कृपा है, तुहाडे भंडार भरे पे ने, वरना उस वेले 6 महीनों तो वध किसी के घर दाना नहीं सी हुंदा। ते एक होर ऐलान किया होया सी, वो ऐलान ये सी कि कोई भी गृहस्थी बंदा नवा जां सोहना महंगा कपड़ा नहीं सी पहन सकता, इलाके का चौधरी ही सोहना कपड़ा पहन सकता सी, जां काजी जां मुलाणा ते जां जिहड़ा चौधरी उही शाही कपड़े पहन सकता सी, वरना आम गृहस्थी जिवें अज तुसीं सज धज के रहिंदे हो ना, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड जुत्तियां ब्रांडेड चीज़ां पाते हो, ये चीज़ां की मनाही सी उस वेले। ये जदों सोहने सज धज के घरों निकलते हो उदों गुरु नानक साहब का शुकराना करया करो, नहीं तो तुहाडे ते पिंडे ते मास नहीं सी छड्डना है। मुलाणियां ने कोरड़ियां नाल कुट कुट मार देना सी, ये बाबे नानक दीयां रहमतां ने। अज आखण नूं भावें आखी जो फलाना गुरु है ते फलाना राजा बादशाह, बाबे नानक दीयां दित्तियां होईयां दातां ने। आख्या करो तू दाता दातार तेरा दिता खावना, ये आखदे ना थकिया करो, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ते अगली गल ये सी कोई भी दुनियावी बंदा जिहड़ा वो हार शिंगार गहना गट्टा नहीं सी पहन सकता। अज ते मौजां बणियां, हर तीजे बंदे ने फोन खब्बे हाथ दे विच 1.25 जां 1.5 लाख का मोबाइल फड़िया होया, प्रो मैक्स 14 आ, किसी को प्रो मैक्स 15 आ। एक हाथ दे विच मोबाइल फड़िया 1.25 लाख का 1.5 लाख का, ते गुट ते घड़ी बन्नी आ 50,000 की जिहड़ी अटैच है एप्पल दे नाल, इक्को गुट दे उत्ते 50,000 की घड़ी ते 1.5 लाख का फोन, 2 लाख हो गया। ते इसे फोन दे विच गूगल पे चलदा, खाते च लाख 2 लाख 4 लाख रुपया भी विच ही लई फिरदा गूगल पे। ऑनलाइन सर्विस डिजिटल इंडिया खब्बे हथ दे विच अज हर बंदा जिहड़ा सरदे पुजदे करदा 1 तो 10 लाख रुपया नगदनामा चुकी फिरदा। ते गुरु नानक देव महाराज दे आउण तो पहला किसी बंदे नूं ये इजाजत नहीं सी कि वह सोहना कपड़ा पा सके, कोई सोहना गहना गट्टा पा सके। ये गुरु नानक साहब दीयां बख्शां ने जिहड़ा राज भाग भोग रहे हैं। ते सब तो मंदी ते दुखदाई उस वेले दा ऐलान सी, सुनियो जिहड़े मावां भैणां तुसीं ज़्यादा करदियां जे मड़ियां मसाणियां ते जां दीवे दूवे बालन दा काम, किड्डी वड्डी गुरु नानक साहब ने तुहाडे उत्ते रहमत कीती आ। मैनूं ये गल करनी नहीं चाहिदी, पर जे तुहानूं दसी ना
तो तुहानू गुरु नानक साहब की बख्शिश का पता नहीं लगना है। जिस भी गृहस्थी के घर धी पैदा होंदी सी ना, उस वेले सिकंदर लोधी के वेले, बहलोल लोधी के वेले धी जवान हो जानी, उहदा विआह होना, आनंद कारज होना, वो साडी धी भैन जिहड़ी उस वेले खानदाना दी हुंदी सी, उहनूं पहला हाकम दे हरमां विच रहना पैंदा सी ते फिर अपने घर आउंदी सी। एडी वड्डी दुखदाई गल सी है। जदों इस तरह सत भंग हुंदे सी ना, तां उदों दुनिया हाल पारिया करदी सी, रब्बा राजे पाप कमावंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। जिन्हां राजियां ने, जिन्हां चौधरियां ने धीआं भैणां दी इज्जत दी राखी करनी सी, ते उही ते कहिंदे सी भी डोला पहलां साडे हरमां च आउणा चाहीदा। ये पाप हो रहा सी, जिन्हों भाई गुरदास जी लिखते ने, पापे दा वरतिया वरतारा, पाप दा वरतारा वरतिया होया सी। जदों इन्ना जुल्म हो रहा सी, इन्ना पाप हो रहा सी, तां उस वेले आ धरती ने भी त्रास त्रास करके अरदास की। कालमल होई मेदनी अरदास करै लिव लाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवै सहज सुभाए। धरती ने पुकार की ते धरती ते वसन वाली सारी खलकत ने अरदासां बेनतियां कीतियां, हे अकाल पुरख वैगुरू तू ए दुनिया दे उत्ते देवते भेजे, देवियां भेजियां, ए पाप ए जुल्म मिटिया ना। तू इत्थे दैंत पैदा कीते, वीर पैदा कीते, इत्थे बली पैदा कीते, पता नहीं किन्ने को पीर पैगंबर औलिए अवतार भेजे। हे अकाल पुरख वैगुरू तू इत्थे कोई 2 कलावां अवतार भेजिया, कोई 10 कलावां अवतार भेजिया, कोई 14 कला, भगवान श्री रामचंद्र 14 कला अवतार आए सी, कृष्ण महाराज 16 कला अवतार आए सी। ते जदों 16 कला अवतारां तो इस धरती का जुल्म ना मिटिया, पाप ना मिटिया, तो फिर महाराज आंदे आ 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। फिर अकाल पुरख वैगुरू ने व्योंतबंदी बनाई भी हुण कलावां दे के जिहड़े अवतार भेजे सी, उन्होंने समय के मुताबक ते जो कुछ करना सी कीता। हुण जिन्हों अगे समा ही नहीं मिलिया, उम्र ही पूरी हो गई, तो उन्हें की करना। हुण इस तरह करिए भी हुण अवतारां दे भेजिया धरती का भला नहीं होना, खलकत का भला नहीं होना। हुण निरंकार ने व्योंतबंदी बनाई भी हुण आपां नूं आप जाना पैना। तो फिर अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। फिर अकाल पुरख वैगुरू ने बेशुमार कलावां लैके निर्गुण तो सरगुण रूप धारण करके संसार ते आउण दी व्योंतबंदी बनाई। फिर भाई गुरदास जी लिखते आ, भाई गुरदास जी लिखते आ, सुनी पुकार दतार प्रभ। धरती की जिहड़ी पुकार सी, धरती ते वसन वाले तमाम जीवां की जिहड़ी पुकार सी, सुनी पुकार दातार प्रभ। वैगुरू ने पुकार सुनी, वो दाते ने पुकार सुनी। गुर नानक जग माहे पठाया, पठाए का मतलब हुंदा भेजना। अकाल पुरख वैगुरू ने गुरु नानक देव महाराज का रूप बना के संसार ते आउणा कीता। ते ये दिन भागा भरिया चढ़िया। तवा री गुरु खालसा दे करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते आ कि कतक दी पूर्णमासी, इस गल का रौला चलता पाया पर साडे वस कुछ नहीं है। जदों कौम दियां आला दर्जे दियां जथेबंदियां कट्ठियां होके श्री अकाल तखत साहब ते बह के कोई साझा फैसला लैणगियां ते उवें असां तुरना आ। जदों साडे जे आगू ही उखड़े फिरदे तो साडा की गुनाह आ। इस गल का जे रौला चलदा, रेड़का है जे बई गुरु नानक साहब का अवतार जिहड़ा वो कतक के विसाख प्रैक्ति दे मगर दे महीने आ रहा। जिस वेले आपां गुरु नानक साहब का पिछे शताब्दी मनाई सी ना 550 सालवीं, उस वेले 44 सालां बाद गुरु नानक साहब का गुरपुरब जिहड़ा मगर दे महीने आया। ये समा बदलता रहिंदा, दिन वाधे घटते रहिंदे। तां
तवारी गुरु खालसा दे करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जियां दे मुताबक वो लिखते भी ऐतवार का दिन चढ़न वाला, शनिवार की रात गुजर रही है, तो जदों ऐतवार का पख लगा, तीजा पैर जानी कि 12 तो लैके 3 बजे का समा गुजरिया, उस वेले माता तृप्ता जी ते उदियां 2 दासियां, दौलतां दाई ते तुलसां दासी, ये माता तृप्ता जियां दी मुट्ठी चापी कर रही सन। तीजा पैर गुजरिया तो चौथा पैर सुबाक है, सुरतियां उपजै चाओ। जदों चौथा पैर चढ़िया तो उस वेले चिड़ी चूकी पौ फुटी वगण बहुत तरंग, पंछियां दी चीक चहाट खोई, तो उस वेले कुकड़ा ने बांगां दित्तियां, रब दे प्यारियां ने वाहगुरू दा नाम पुकारना कीता। किते किते मुलाने जिहड़े ने कबीर मुला मुनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए, तो मुला जिहड़े ने वो उच्ची मनार ते चढ़ के बांगां दे रहे सन। उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। सवेर की नमाज देण वास्ते मुलाने जिहड़े ने तत्पर होए सी, उजू साज के बांग दे रहे सन, ते पंछियां दी चीक चहाट खोई सी। भिन्नी रैनड़िया चमकण तारे, जागै संत जना मेरे राम प्यारे। रब दे प्यारे भी अमृत वेले उठ के खूहां दी मण उत्ते डोल खड़क रहा सी। तां इधर भाई गुरदास जी लिखते ने, पुत जणै वड़ कोठड़ी बाहर जग जाणै। माता तृप्ता ने कोठड़ी दे अंदर विश्राम कीता आ, ते अज दा दिन जिहड़ा चढ़िया ऐतवार दा भागां वाला दिन चढ़िया। कतक दी पूर्णमासी सी, 1469 दा सन सी। राए भोए दी तलवंडी सी, लाहौर तो 20 मील पच्छम वाले पासे परगना सी सकरपुर, ते इस परगने दा कारदार मेहता कल्याण चंद बेदी साहब दा घर सी। ते माता तृप्ता जी की कुख नूं भाग लगे, एक अवतारी पुरख ने अवतार धारिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अवतार का मतलब हुंदा है कि अरशां तो फर्श ते उतरना, अरशां तो फर्श ते उतरना अवतार का मतलब है। महाराज बाणी अंदर जिक्र करते ने, अवतरिया अवतार लै सो पुरख सुजान, कि अकाल पुरख वाहगुरू अरशां तो फर्श ते उतरिया, अवतार धारण कीता। फिर महाराज आंदे आ, गोरे अर्जुन घर गुर रामदास भगत उतरे आयो। तो जे सादे हथां च पुछना तो भगत कबीर साहब आंदे आपां सारे ही अवतार धारिया। भगत कबीर साहब आंदे अवतारे आए कहाँ तुम कीना, राम को नाम ना कबहू लीना। भगत कबीर साहब आंदे जिन्ने भी गृहस्थी हो सारे तुसी परमेश्वर ने तुहानू अवतार बना के भेजिया, मनुखा अवतार च आए आप। साडे विच परमात्मा दी अंश आ। अवतारे आए ऐ जीव तू अवतार ते धार लिया, ते मनुखा जन्म का अवतार धार के दस कीता की है, कोई नेकी की खट्टी है। अवतारे आए कहाँ तुम कीना, की कीता ही, ते आपां जवाब देना मैं ते मना मुई झूठ बोलिया, बेशुमार निंदा की थोड़ी है। बदियां रज रज के कीतियां, पाप रज रज के कीते, नशियां दा कोई तोड़ नहीं छड्डिया, नाले कायां दा नाश कीता, नाले अपने घर दी वित दा नाश कीता, नाले मापियां नूं दुख दिता, नाले सुख नाल जीवन साथी नूं दुख दिता, नाले धीआं पुत्रां दा भविख भट्ठी च पाया। इदू ते होर की करना। कबीर साहब आंदे अवतारे आए कहाँ तुम कीना, अवतार आया सैं परमेश्वर ने भेजिया सी, इत्थे आके नेकी दा की काम कीता ही, नाम जपिया ही, सेवा कीती आ, संगत कीती आ। सिख कौम नूं पता नहीं की हो गया, सिख कौम नूं पता नहीं की हो गया, उजड़ पै गई सिख कौम। गुरु ग्रंथ साहब महाराज आंदे तित जाए बहु हो सत संगति। गुरु नानक साहब का हुक्म है सत संगत जाके बहना, जिथे हर का हर नाम बलोई है, सत संगत विच बैठ के परमेश्वर का नाम नूं रिड़कना। बिलाउण का मतलब हुंदा जिवें माइयां दुध रिड़कदियां,
मैं बेनती करना जिहड़ी माँ चौंके विच मधानी पा के चाटी दे विच ते खलो के मधानी रिड़के, दसो है उम्मीद ना चाटी बचनी है, ना लस्सी, ना मक्खन, कुछ भी नहीं बचना है। इस तरह साडा काम है, दुनिया अज पता नहीं कित्थे कित्थे तुरी फिरी है। महाराज ने आख्या तित जाए बहु सत संगति, गुरबाणी ने हुक्म किया सी सत संगत विच बहना। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, पर कौम कुराहे पै गई, अपनी मर्जी कर लगी। चार कू गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पालकी च बहा के चार कू जीव जिहड़े ने वो पिंड दी ऐस गली च तुरे आ, चार कू औस नूं तुरे आ। महाराज किरपा करन के आपां सत संगत च बैठ के गुरबाणी दे फलसफे नूं समझ सकीए। तित जाए बहु सत संगति, जिथे हर का हर नाम बलोईए। ये गुरबाणी दे सिद्धांत नूं जिन्नी देर तक समझिए ना उन्नी देर तक जिंदगी सवरदी नहीं। आपां भी अवतार आए हैं, पर अपने तो इस मनुखा जन्म का लाहा नहीं लिया गया। आपां घाटे च चल रहे हैं, दिन ब दिन घाटे च चल रहे हैं। एक ना एक दिन सफा चट हो जानी, अपने पल्ले कख भी नहीं पैना। अवतार का मतलब हुंदा निर्गुण स्वरूप तो सरगुण रूप धारण करके अरशां तो फरशां तक आउणा, निरंकार दी सचखंड विचों इस मात लोक विच आउणा। माता त्रिपता दे घर च बालक ने अवतार धारिया। तुलसा दासी ते दौलतां दाई कोल ने। इन्हां ने जदों अवतार का समा आया तो इन्हां ने की कौतुक वेख्या कि घर दे विच इन्ना प्रकाश होया, इन्ना प्रकाश होया, इन्हां नूं कोई सोझ ही नहीं रही। वेख विडाण रहा विस्माद। बस वो अवतार वाली घटना वेखदियां सारे दोवें बीबियां विस्मादी अवस्था चलियां गईयां, दियां अखां चुंधिया गईयां। तां इन्नी देर नूं माता त्रिपता ने आवाज़ मारी, नहीं तुलसा नहीं दौलतां। जदों आवाज़ मारी तो चेतन सत्ता च आईयां, कहन लगे बालक नूं संभालो। तां इन्हां दोवां ने फिर ये बालक नूं संभालिया ते साफ करके ते दौलतां दाई ने बच्चे नूं ना अपने दोवां हत्थां च इस तरह चुकिया। आ ध्यान दिओ सारे जने। दौलतां दाई ने इस बालक नूं अपने हत्थां दे उत्ते चुकिया आ ते चुकिया ते नीज ला के वेंदी पई आ। कहन लगी इन्ने बच्चियां नूं मैं जन्म दवाया, बड़े बच्चियां दी साਂਭ संभाल कीती है। जेड़ा बच्चा जन्म लैंदा ते जन्म वेले ओदियां अखां ते ओदे मूँह ते शरीर ते सोजा हुंदा है, इस बालक दे ते शरीर नूं सोजा ही नहीं है। हैरान हो गई। कथा तुसां बहुत बार सुननी है, ध्यान दिओ। हुण नानक निरंकारी दा अवतार पुरब आ। कहन लगी सारे बच्चियां दे शरीर नूं सोजा हुंदा है, जेड़ा मेहता कल्याण चंद बेदी दे घर पुत्र पैदा होया इहदे चेहरे मोहरे ते सोजा ही नहीं है। ये कोई आम बच्चा नहीं तो कोई अवतारी पुरुष है। फिर नीज ला के वेंदी है, जेड़ा भी बच्चा जन्म लैंदा गृहस्थियां दा, वो जन्म लैंदियां सार भुब्बा मार मार के रोंदा है। ते इहने ते एक बार हुंगर भी नहीं भरी, रो के नहीं वेख्या है। ये कोई आम बच्चा नहीं, ये ते अवतारी पुरुष है। फिर नज़र मार के वेंदी, कहन लगी जिन्ने बच्चियां ने जन्म लिया ते मैं उन्हां दी साਂਭ संभाल कीती, उन्हां बच्चियां दे नेत्र बंद हुंदे आ ते इस दे ते जन्म लैंदियां सारी नेत्र खुले ने ते मेरे वल मस्तानी नज़र नाल पिया वेखदा। किहड़ी नज़र सी ओ? नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक साहब ने पहले दिन जिहड़ी नज़र पाई है दौलतां दाई दे उत्ते पाई है। ऐसी नज़र पाई है दौलतां दाई ते उहदे यार बुखार भर दिते। ते फिर अगली गल वेंदी है ध्यान नाल भी जिन्ने भी बच्चे जन्म लैंदे आ ना, उन्हां दियां मुठियां बंद हुंदियां ने। इहदे दोवां हत्थां दियां मुठियां खुलियां ने, इहदियां मुठियां बंद ही है नहीं। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ते अवतारी पुरुष है। गुरु नानक साहब दियां दोवें तलियां इस तरह साफ, हथ खुले, मुठियां बंद नहीं सी है। क्यों नहीं सन है पता? सब निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया।
ਇਹ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਫੜਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੋ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਚਿਹਣ ਚੱਕਰ ਵੇਖੇ ਆ ਤੇ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਦੌਲਤਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ੀਰ ਪਿਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੀਰ ਪੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸ਼ੀਰ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਅਖੀਰੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨ ਖੀਰਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੀਰ ਪਿਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਧਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਪੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਦੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ 9/9 ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵਧਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਨ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਕਾਰਦਾਰ ਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪੈਸਾ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੰਗ ਲਾ। ਆਂਦੀ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਕਾਰਦਾਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਮਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ
बाहर अग बाल के रख देंदियां, सराहने पुट्ठा तवा मार देंदियां, पैंद नूं जंदरा मार देंदियां कि जिहड़ा बाहरों आवे वो पैर मूँह धो के आवे, जुत्ती झाड़ के अंदर आवे, जिहड़ा आवे पहलां बाहर बवे फिर हौली हौली अंदर आवे। बंदिशां लग जांदियां ने ना। दौलतां दाई कहंदी भी तेरे घर जन्मिया पुत्र, तेरे पुत्र दे चेहरे वल वेख्या नहीं जांदा ते तुसां हुण लाउणियां पाबंदियां। जे कुछ मैनू ये खबर खुशखबरी दे बदले देना चाहुंदा तां मेरी एक बेनती है, मैनू आउण जाण तो रोकियो ना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरी तो आ मंग आ। कहन लगे ठीक आ। तो फिर इस तो बाद पंडित रदियाल जियां नूं सद्दिया गया भी लियाओ साडे पुत्र दी जन्म पत्री बनाओ। ये सनातन मत चलदा आ रहा सी, उहदी रौह रीति दे मुताबक ही सारी क्रिया होनी सी। पंडित रदियाल जियां नूं पता लगा, वो आए ते मेहता कल्याण चंद बेदी दे घर पुत्र जन्मिया। सारे राय भोए दी तलवंडी दे विच खबर फैल गई। जदों खबर फैली तो सारियां माइयां जिहड़ियां मंगलीक चीज़ां लैके माता तृप्ता जियां नूं वधाई देण वास्ते आ रही। किसी ने भांडा दुध दा भरिया, किसी ने गुड़ दी पेसी लई, किसी ने केसर लिया, किसी ने शक्कर घ्यो लिया, किसी ने कपड़े चुके, किसी ने माया, किसी ने सोना आदि मंगलीक चीज़ां लैके मेहता कल्याण चंद बेदी के घर वधाई देण पहुँचे। तो इधर मेहता कल्याण चंद बेदी जिहड़ा बेशुमार गरीबां नूं दान दे रहा है, उधरों पंडित रदियाल जी आए तो आके जदों मेहता कल्याण चंद बेदी नूं वधाई दित्ती तो अगों उन्होंने आख्या अकाल पुरख वाहिगुरू तुहानूं भी वधाए। एक बेनती जे किसी भैन भरा दे घर कोई खुशी होवे ना तो उहदी खुशी वेख के सड़ीदा नहीं हुंदा। जे किते घर पुत्र पोतरा पैदा होवे, किसी नूं कोई खुशी मिले तो उन्होंने वधाई देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? नुकता नोट कर लियो, दोबारा किते इकट्ठे होइए कि ना होइए। मन लो कि तुहाडे घर पुत्र पैदा होया ते तुहानूं इन्ना चाਅ आ पुत्र दा कि तुहाडा मन जिहड़ा गदा गद होया, तुहाडा मन ऐन प्रसन्न आ ते मैं तुहानूं दित्ती वधाई भी सरदार जी वधाइओ तुहाडे घर पुत्र पैदा होया। मैं भावें उपरों उपरों वधाई दित्ती है भी मन मेरा खुश नहीं, पर फारमैलिटी पूरी की है। मैं ओपरे मन नाल आख्या भी सरदार जी वधाई तुहाडे घर पुत्र पैदा होया, पर तुसी तां सच्चे हो ना, अंदरों तुहानूं रब ने दात दित्ती, तुहाडा मन बिल्कुल खुश है। तुसां अगों की कहना भी परमात्मा तुहानूं भी वधाए, कि तुहानूं भी सवा वधाई रब तुहानूं भी वधाए। आपां भावें ओपरे मन नाल वधाई दित्ती है, पर जिहदे घर पुत्र पोतरा होया वो रोम रोम करके खुशी है, उन्हें रोम रोम करके तुहानूं आखना रब तुहानूं भी वधाए। फायदा किनूं होना? आपां नूं फायदा होना। जे किसी दे घर पुत्र पैदा होवे, किदा धी पुत्र विआहया जाए, किदा बच्चा कोई नौकरी लग जाए, किसी दा देश परदेश चला जाए, तो उन्होंने वधाई दिओ, उहदी खुशी विच शरीक होवो। अगला सच्चे सुच्चे मन नाल आंदा रब तुहानूं भी वधाए। जे बाल कंध नाल मारीए गेंद तो मुड़ के अपने कोल ही आउणी है ना। ये नुकता जे किसी दी खुशी वेख के सड़ी दा नहीं हुंदा, सगों उहदी खुशी दे विच शरीक होना चाहिए। ते अगला भी दुआ दिंदा ते रब जिहड़ा है जियां विच ही वसदा, फिर मालक सानू भी रहमतां करदा। पंडित रदियाल जियां ने वधाई दित्ती। मेहता कल्याण चंद बेदी ने आख्या तुसीं रब दी बंदगी करन वालिओ, तुहाडीआं दुआवां नाल साडे घर रौनकां लगियां। कहन लगे लियाओ तुहाडे पुत्र दी पत्री बनाइए। कहन लगे जिस वेले जन्म होया उस वेले जिहड़ा कोल बंदा सी उहनूं बुलाओ। कहन लगे दौलतां दाई कोल सी जां तुलसां दासी सी कोल? दोवां नूं सद्दिया गया। पंडित रदियाल जी पुछदे दसो समां किहड़ा सी? ते इन्हां ने आख्या जी अमृत वेला सी। अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। अमृत वेले का समा सी, पंछी चीक रहे सी, चिड़ी चूकी पौ फुटी, वगण बहुत तरंग। तो रब दे प्यारे परमेश्वर का नाम जप रहे सन उस वेले। अमृत वेले का समा सी, पंडित रदियाल ने लिख लिया। फिर उस तो बाद कहन लगे जो जन्म होया उदों की घटना घटी? दौलतां दाई कहन लगी भी जदों ये बच्चे ने अवतार धारिया उस वेले कमरे विच उस कोठड़ी विच
इन्ना प्रकाश होया, इन्ना प्रकाश होया, सानू कुछ भी दिसिया भालिया नहीं। साडियां अखां चुंदे आ गईयां, सानू कुछ भी नज़र नहीं आया है। कह लगे फिर माता नूं तो पता होवेगा जिन्हें बच्चे नूं जन्म दिता है। आ बड़ी पते की गल है। माता तृप्ता जी नूं पुछया, माता तृप्ता जी कह लगे जदों इस मेरे पुत्र ने जन्म लिया ना, उदों मैनूं प्रस्तूत की पीड़ा नहीं व्यापी है। आपां वा ना जिहड़े आपां जन्म वेले, जन्म लैण वेले मां नूं दुख दिता ते आप दुखी होए हैं जन्म लैण लगे। सारियां दी गल है। ते जन्म लैण तो बाद भी जिहड़े बच्चे माड़े निकले, वो मापियां नूं फिर दुख दे रहे हैं। नशई ते विषई बदी करन वाले मापियां दा लहू पींदे पे। जिद्दण आपां दुनिया तो जाना है, आपां भी दुखी होना जान लगे, शरीर छड्डण लगे। ते जदों जाना अपने माँ प्यो नूं फिर दुखी करके जाना है। साडी आ फितरत है। माता तृप्ता कहन लगे मेरे पुत्र ने जन्म वेले मैनू प्रस्तूत की पीड़ा नहीं दिती है। पंडित रदियाल कहन लगे हैरानी की गल आ। दूजी गल लगी दसो। दौलतां दाई कहन लगी पंडित जी जिन्ने बच्चियां ने जन्म लिया ते असां बचन जन्म वेले उनकी सेवा संभाल की है, उन्हां बच्चियां दे शरीर नूं सोजा हुंदा, पर इस बालक दे शरीर नूं सोजा नहीं है। जिन्ने बच्चियां नूं जन्म दवाया उन्हां बच्चियां दे नेत्र बंद हुंदे ने, इहदे नेत्र खुले सन। जिन्ने बच्चियां दा जन्म दवाया वो जन्म वेले रोंदे ने, ये मुस्करा रहा सी। जिन्ने बच्चियां दा जन्म दवाया ते उनकी सेवा संभाल की है, वो रोंदे ने ते मुस्करा रहा सी। जो सारियां गल्लां दसियां पंडित रदियाल जी ने पत्री बना के आख्या मेहता कल्याण चंद बेदी तेरे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होया कोई आम पुत्र नहीं है, ये बड़ा प्रतापी पुत्र पैदा होया, ये अवतारी है, निरंकार दी जोत ने तेरे घर प्रवेश किया है। जिन्नी देर तक तू है ते अपने पुत्र दा कदे मूँह ना फटकारी, अपने पुत्र नूं कदे झिड़की ना। तेरे घर पुत्र नहीं, तेरे घर रब पैदा आया, नूं झिड़की ना मारी ना। कहन लगे तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी है ते इहदे सिर दे उत्ते चौर झुलेगा, छत्र झुलेगा। तेरा पुत्र जिहड़ा सारी दुनिया दे भाव सागर दा मलाह बनेगा। तेरे पुत्र दा एक वखरा पंथ चलेगा। तेरे पुत्र दी देवते मनुख पशु पंछी हवावां पानी जिहड़े ने वो हुक्म मन्निया करनगे। ये जदों सारी पत्री बनाती तो पंडित रदियाल जियां नूं दान दक्षिणा दिती, माया दिती दान विच, ते आख्या साडे पुत्र दा नां रखो। कहन लगे इहदा नां रखांगे छठी वाले दिन। आ बिहारियां दा त्यौहार है छठी दा दिन, छठ दा त्यौहार। छठी वाले दिन पंडित रदियाल जियां ने फिर मेहता कल्याण चंद बेदी दे घर पैदा होए पुत्र दा नाम वड्डी भैन दे नाल रलदा मिलदा रखिया। भैन नानकी नां रखे ते नां रखिया नानक। नानक नां रखिया ते नानक नां रख के ते शगन मनाए गए। ते ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दा अज प्रकाश दिहाड़ा तुसां सारियां संगतां ने मनाया। तुहानू सारियां नू लख लख वधाइयां होण जी। हुण आई गल नानक नाम दी। बाणी विच तुसीं पढ़िया है, पाठ आउंदा है जन नानक कहो नानक कह नानक जां बाबा नानक। की बाणी दे अंदर वो नाम पूरा लिखिया जिहड़ा तुहाडे घर फोटोआं दे थल्ले लिखिया धन धन गुरु नानक देव जी। ये जिहड़ा बचन आ बाणी दे विच लिखिया होया, मैं मंगल पढ़िया सी, जिहड़े समझण वाले समझ गए। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा कानड़ा राग है, राग 28वां राग है। उहदे विच महाराज ने जिक्र किया आ दर्शन प्यास बहुत मन मेरा मिल गुर नानक मिल नानक देव जगत गुर केरा। इत्थे पाठ आया मिल नानक देव जगत गुर केरा। गुर शब्द पिछे लिखिया
नानक देव अगे लिखिया। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने 25वें राग बसंत राग विच जदों भगतां दा शब्द उचारण कीता ना, वक्खो वक्खरे भगतां दा नाम लैके वडियाई कीती है, ते अंत वाले बंद विच लिखदे ने रविदास ध्याए प्रभ अनूप गुर नानक देव गोबिंद रूप। आ पंक्ति है 25वें राग दी, गुरु अर्जन देव महाराज दा बचन है, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे खब्बे अंग दे उत्ते प्रकाश आ, उत्थे लिखिया गुर नानक देव गोबिंद रूप। वैसे ना गुरु नानक साहब दा नानक रखिया गया, पर बाणी दे विच पूरा नां आ गुरु नानक देव। मैं जिथों विचार शुरू कीती सी, भट्टी राजपूत भोए ने अपना धर्म त्याग के इस्लाम मत धारण किया। गल माड़ी है, अपना धर्म नहीं छड्डना चाहिए, पर जिहड़ी बेधर्मे हो के भाव इस्लाम मत विच धर्मी हो के 10 पिंडां दी जगीर हासिल की, ते समा चलदा गया ते शिवराम बेदी नूं कारदार लाया। अगों दा पुत्र कल्याण चंद बेदी कारदार लगा। कल्याण चंद बेदी दे घर पुत्र पैदा होया धन श्री गुरु नानक देव जी। ते गुरु नानक देव महाराज जी इधर पैदा होए जवान हुंदे पने, तो राय बुलार पैदा होया जवान हो रहा। राय बुलार जिहड़ा वो मेहता कल्याण चंद बेदी का भी बड़ा सत्कार करदा, ते धन श्री गुरु नानक देव महाराज दा बड़ा सत्कार करदा। हुण 10 पिंडां दी जिहड़ी जगीर सी, राय बुलार ने जिहड़ी बेधर्मी हो के राजपूत धर्म छड्ड के मुसलमान हो गया सी ना, भट्टी राजपूत भोए। 10 पिंडां दी जगीर जिहड़ी धर्म बदलण दे बदले मिली सी, वो सारी दी सारी जगीर जिहड़ी है 7000 एकड़ जमीन धन श्री गुरु नानक देव महाराज दे नाल लवा गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कदे समा आया सी लालचवास होके जगीर लै लई, ते आख्या धर्म तब्दील किया, मैं धर्मी होया ते मैनू जगीर मिली, ते अज नानक निरंकारी ने मेरे ते रहमत की है, मैनू सेवावां मिलियां ने। ये मेरे परगणे च रब पैदा होया है, ते इस परगणे का मरला मरला जिहड़ा गुरु नानक साहब दे नां कर दिता है। अज भी पाकिस्तान की गजट के अंदर मुरब्बियां दे मुरब्बे जमीन जिहड़ी धन गुरु नानक देव महाराज दे नां बोलदी अज भी। ते जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह लाहौर का बादशाह बनिया, तो महाराजा रणजीत सिंह भी जिस धाम ते गया, ते उस धाम दे नाल मुरब्बियां दे मुरब्बे जमीन दे लवाए। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दे प्रकाश दिहाड़े दियां वडियाइयां करदिआं बेअंत प्रकार दियां भुल्लां जणियां सुभावक ने। मैं विचार शुरू कीती सी, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन्या गुरु नानक देव महाराज जियां दी कुल कहिए खानदान, 3 बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय। बेदी खानदान धन्या जिहदे विच गुरु नानक साहब प्रगटे। धन्या मेहता कल्याण चंद बेदी जिन्हां दे घर गुरु नानक देव महाराज ने अवतार धारिया। धन्या सत्कारयोग माता तृप्ता जी जिन्हां ने अपनी कुख तो अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ये दात जिहड़ी प्राप्त होई उन्होंने कि अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जन्म देण दा सुभाग प्राप्त होया। वैसे परमेश्वर जोनियां च नहीं आउंदा, नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। वाहिगुरू जिहड़ा जोनियां तो बाहर आ, पर निर्गुण तो सरगुण रूप जिहड़ा निरंकार ने आप धारना कीता दुनिया दे भले वास्ते। धन श्री गुरु नानक देव महाराज दे जीवन दी विचार करदे आ होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी। धन्नवाद आ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह सज्जन साहिबानां दा जिन्हां ने हुक्म कीता ते मैं आप जियां दे दर्शन कर सकिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जियां दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब और साडी कौम दे शहीदां दा पाक पवित्र स्थान आ माता गुजर कौर जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी दा। सो प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद, गुरु के वजीर सिंघां दा धन्नवाद, मेरे अति सत्कारयोग ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर धर्म प्रचारक की सेवा निभा रहे आ। छोटा वीर आ साडा, बहुत मुहब्बत करते आ। गुरु साहब कृपा करन के इन्हां नूं
गुरमत दीयां दातां देण महाराज, बाणी बाणे दा प्यार बख्शण, विद्या दी दात देण, इसे तरह गुरमत दी प्रचार दी सेवा करन दा बल बख्शण। और धन्नवाद आ मेरी कौम दे शहीदां ते मुरीदां दा, सब तो वध धन्नवाद आ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, जिन्हां ने कृपा कीती। जे पास बहाले तां तोजी आराधी, जे मार कड्डै भी त्याई, विचार करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ, ਗੂੰਜ ਪਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜੇ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। मोहन घारे आओ करूं जो दरिया। सारी संगत अपने हिस्से विच बोलियो। आ नानका वे कदे असा वाले वेड़े, आ नानका वे कदे असा वाले वेड़े, दीवे बैठे आसां दे जगा, नानका वे कदे असां वाले वेड़े, आ नानका वे कदे असां वाले वेड़े। सुन्ना रहा वेड़ा सानू खा, नानका वे कदे असां वाले वेड़े, आ नानका वे कदे असां वाले वेड़े। बंदगी दी खैर झोली पा, नानका वे कदे असां वाले वेड़े, आ नानका वे कदे असां वाले वेड़े। दीवे बैठे आसां दे जगा, नानका वे कदे असां वाले वेड़े, आ नानका वे कदे असां वाले वेड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।